Hello, Namaste and Konnichiwa. Welcome to Sandeep's classes. This is the fourth video of the solid state, and today we are going to learn about imperfection in solids, that is defects in solid. Solid में क्या defect होते हैं, types of defects, semiconductors, the band theory and various magnetic properties of the solid state. Okay, before that, today's thought. Knowledge is a treasure, but practice is a key to it. This has been said by Chinese philosopher Lao Tzu, which existed in China in 14th century. Knowledge is a treasure, but practice is a key to it. बहुत डीप मीनिंग है इसका. सपोज जैसे कोई मार्शल आर्टिस्ट है, अगर वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं करता है तो कितना भी बड़ा योद्धा हो, लेकिन वो उसे हराया जा सकता है. उसी तरह अगर कोई पेंटर हो और वो पेंट नहीं करता है, आर्टिस्ट है, कोई आर्ट नहीं करता है, तो वो अपने स्किल्स भूल जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि वो उसके प्रैक्टिस नहीं कर रहा है. उसी तरह स्टूडेंट्स, आप लोग के पास कोई नॉलेज है, इफ़ यू हैव नॉलेज बट यू आर नॉट रेगुलरली प्रैक्टिसिंग दैट नॉलेज, देन ऑब्वियसली देयर इज़ ए ग्रेट चांस दैट यू विल फॉरगॉट योर स्किल. और यही होता है आजकल के स्टूडेंट के साथ. वो लोग पढ़ते तो हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, और एग्ज़ाम में वो लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है याद रखने में, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते. सो नॉलेज है, ठीक है, पढ़ो और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करो, तब वो नॉलेज काम आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, लास्ट टाइम में मैंने कुछ पेपर वर्क दिया था तुम लोग को करने के लिए. ये इसका आंसर्स है. क्वेश्चन क्या था? एन एलिमेंट विद मॉलिक्यूलर मास इतना forms a cubic unit cell with H length 405 picometers if the density is 2.7 into 10 to the power 3 kg per meter cube. What is the nature of the cubic unit cell? मतलब Z का वैल्यू कैलकुलेट करना है और हम लोग को बताना है कौन सा टाइप का यूनिट सेल है. तो मॉलिक्यूलर मास है हम लोग के पास, उसे ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और A इक्वल टू H लेंथ है 405 पिकोमीटर्स. इसको कन्वर्ट किया 405 इंटू 10 टू द पावर -10. मीटर नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, मीटर नहीं यहाँ पे सेंटीमीटर होगा. 405 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई किया जाता है. ठीक है. रॉ को हम लोगों ने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया. ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में. और एन ए का वैल्यू हम लोग को पता है ऑलरेडी. रॉ इक्वल टू ZM A³/NA. ये फॉर्मूला हम लोग क्लास टे पढ़े थे. देन हम लोग को यहाँ से Z का वैल्यू कैलकुलेट करना था. Z इक्वल टू रॉ इंटू A³ इंटू NA डिवाइडेड बाई M. ठीक है. सो बस वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है. आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा, कभी भी एग्जैक्टली 4, 2 या 1 नहीं आएगा. 4.004 आया, दैट मीन्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली नियर बाई 4. सो द नेचर ऑफ द यूनिट सेल इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, दैट इज FCC. ओके, नेक्स्ट. Silver crystallizes in an FCC lattice with all the atoms at the lattice points. ठीक है. The length of the edge of the unit cell as determined by the X-ray is इतना centimeters. The density of silver is 10.5 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of silver. So Z is equal to 4 since it is an FCC. Edge length is given, rho is given. What you have to calculate? Atomic mass of the cell, that is M. You have to calculate the molecular mass, that is atomic mass. Atomic mass you have to calculate. Atomic mass and molecular mass both are represented by capital M here in this formula. So you have to calculate that, and this is the answer. It was very simple. Next question. Here you have to calculate the atomic mass of the niobium. Okay, atomic mass of the niobium. Niobium crystallizes in BCC structure if density is given. You have to calculate the atomic radius. You have to calculate the atomic radius of niobium given that atomic mass of the niobium is 93 gram per mole. So remember, you have to calculate here atomic radius, not the H length. First you have to calculate the H length, and from the edge length and radius
relation you can calculate the radius. Let's see how it has been done. Firstly, the density is given, atomic mass is given, and z equal to 2 for the BCC structure. Z is equal to 2. N is, you know, you have to calculate the value of A. By applying formula, you have calculated the value of A, okay, which is in centimeter. I forgot to write, which is centimeter. And now, after you have calculated the value of A, you can calculate the value of atomic radius by using the formula for BCC. Edge length and radius relation for BCC is 4r equal to A root 3 for BCC, and from there you can calculate the value of R by this formula, and finally you get the answer 1.43 into 10 to the power minus 8 centimeter, which is 1.43 angstrom. Okay, let's start today's topic. Imperfection or defects in solids. See, the solids are said to be defect free when those atoms or ions are positioned on their place. जब atoms और ions अपने position पे रहते हैं और वो रिमूव नहीं किए रहते या फिर वो अपने जगह पे रहते हैं, तो उनमें कोई डिफेक्ट नहीं रहता. दे आर डिफेक्टलेस. बट वेन एवर एनी इरेगुलरिटी और डिसऑर्डरिंग इन द अरेंजमेंट अराइजेस, ठीक है, देन solid is said to have defect or imperfection. Means it's not perfect now, so imperfection. So point defects. What is point defect? Such defects arise due to deviation from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance. In a crystalline substance, suppose there are many atoms regularly arranged, and suppose one of the atom get missing from the crystal lattice. अगर कोई एक एटम मिस हो जाता है क्रिस्टल लैटिस से, देन उसमें डिफेक्ट अराइज हो जाता है. ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं उसको. तो पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट. ठीक है, नॉन स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आते हैं उसमें से रेयरली, बट स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स. सो स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट इज दैट these defects are found in stoichiometric compound. अब stoichiometric compound क्या होता है? stoichiometric compound का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का रेशियो सेम होता है. रेशियो सेम होता है इन द सेंस दैट जितना पॉजिटिव आयन है उतना ही नेगेटिव आयन है, जितना कैटायन है उतना ही एनायन है. अगर इस क्रिस्टल में 10 कैटायन है तो 10 ही एनायन होगा, 20 कैटायंस है तो 20 एनायंस होगा, न कम न ज़्यादा. तो इस टाइप का जो डिफेक्ट रहता है इसमें स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं. ठीक है, सो these defects are also known as intrinsic or thermodynamic defects because the number of defects depend upon the temperature. ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करने की वजह से थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं. तो स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट 4 टाइप्स होते हैं: स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ठीक है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं. This type of defect arises in those ionic crystal which have approx similar size of cation and anion. तो ये उस टाइप के क्रिस्टल में अराइज करता है स्कॉटकी डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन का जो साइज होता है वो सेम होता है, उनका जो एटॉमिक रेडियस या वॉल्यूम सेम रहता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है. उस केस में स्कॉटकी डिफेक्ट अराइज करता है. ठीक है, तो इन दिस डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस लीव द क्रिस्टल, hence electrical neutrality is maintained. ठीक है, hence electrical neutrality is maintained. Here the density of the crystal decreases. अब इसमें होता क्या, क्रिस्टल है, क्रिस्टल में से सपोज 2 कैटायन गए तो 2 एनायन भी जाएंगे, 2 पॉजिटिव आयन गया तो 2 नेगेटिव आयन भी जाएंगे. इसलिए स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब स्ट्रक्चोमेट्रिक कंपाउंड में ये होता है. और ये किस टाइप का कंपाउंड में होगा, जिसमें कैटायन और एनायन का साइज सिमिलर हो. ध्यान रखने वाली बात है, कैटायन और एनायन का जिसमें साइज सिमिलर हो उसी में स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायंस जितने क्रिस्टल को छोड़ के जाएंगे उतने ही एनायंस भी छोड़ के जाएंगे. ठीक है, और इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होता है. देखो, अगर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है तो क्रिस्टल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है तो क्रिस्टल नेगेटिव होगा. लेकिन अगर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहते हैं तो
क्रिस्टल न्यूट्रल होगा। और स्कॉटकी डिफेक्ट में यही होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज रिमूव होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी रिमूव होता है। हेयर द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। देखो स्कॉटकी डिफेक्ट में और एक बात है, हम लोग को पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो सपोज क्रिस्टल का वॉल्यूम इतना है, उसमें से कुछ आयंस चले गए, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस चले गए, तो क्या हुआ, मास कम गया ना, मास तो कम गया। तो मास अगर कम जाएगा तो अल्टीमेटली डेंसिटी भी कम जाएगा, ठीक है। इसलिए स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज रहता है। ध्यान रखने वाली बात है, डेंसिटी डिक्रीजेस इन द स्कॉटकी डिफेक्ट। इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आर सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। कंडीशन जैसे मैंने बोला था, ये किस में होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेम रहते हैं, उसमें स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल्स, जिस क्रिस्टल में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहता है, मतलब जिस क्रिस्टल में एटॉम्स दूसरे एटम्स को टच कर रहे होते हैं, ज़्यादा एटम्स को टच कर रहे होते हैं, उसका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, उस टाइप का क्रिस्टल को, ठीक है। देन दिस डिफेक्ट्स इज सीन स्ट्रांगली इन आयनिक कंपाउंड्स विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हैविंग equal sizes of positive and negative ions. Okay, next is Frankel defect. This defect arises in those crystals which have difference in size of cation and anion. मतलब anion और cation सेम साइज के नहीं होते हैं, ऑब्वियसली cation छोटा होगा और anion बड़ा होगा, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, in this defect small size ion mostly cation misplace their position and occupy interstitial site, hence no change in the density takes place. एक्चुअली होता क्या है, देखो ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल में से पॉजिटिव नेगेटिव आयंस पहले ठीक से अरेंज थे, लेकिन एक पॉजिटिव आयन, ध्यान रखना पॉजिटिव आयंस अपने पोजीशन से हट के दूसरे पोजीशन में आ गया, दूसरे पोजीशन पे आ गया, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग ये वाला। अब आप लोग पूछेंगे कि इसमें पॉजिटिव आयन से क्यों डिस्प्लेस हुआ, नेगेटिव आयन क्यों डिस्प्लेस नहीं हुआ। पॉजिटिव आयन इसलिए डिस्प्लेस होता है क्योंकि पॉजिटिव आयन का साइज छोटा होता है, नेगेटिव आयन का साइज बड़ा होता है, तो नेगेटिव आयन अपने जगह से नहीं हट पाता, लेकिन पॉजिटिव आयन कैटायन जो है वो अपने पोजीशन से हट के दूसरे पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि वो दो तीन एटम के बीच में जो थोड़ा सा खाली जगह रहता है उसमें आ जाता है, ठीक है। सो in this defect small size ion mostly cation misplace their position and occupy interstitial site, hence no change in the density takes place. इसमें डेंसिटी चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें मास ही नहीं कम था। पहले वाले में तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना, तो मास कम जाता है इसलिए डेंसिटी कम जाता है स्कॉट के डिफेक्ट में। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में मास ही नहीं कम था, उसमें कैटायंस या एनायंस कोई भी क्रिस्टल को छोड़ के नहीं जा रहा है, कोई भी क्रिस्टल को छोड़ के नहीं जा रहा है, सब इधर ही है, बस अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तो मास कमा नहीं, तो डेंसिटी नहीं कमेगा। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना, तो मास अगर कमेगा नहीं तो डेंसिटी क्यों कमेगा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में देयर इज़ नो चेंज इन डेंसिटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन क्यों, क्योंकि इसने अपने लोकेशन चेंज कर लिया, कैटायन ने अपने लोकेशन चेंज करके दूसरे लोकेशन पर चला गया, इसलिए डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। कंडीशंस ठीक उसका ऑपोजिट है स्कॉट के डिफेक्ट का। ये होता है लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल पे, और एनायंस का साइज बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कैटायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना, वो बोथ स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों ही शो करता है, ऐसा एक एग्जांपल है ये सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है। ओके, थर्ड वैकेंसी डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट अराइज इन नॉन आयनिक क्रिस्टल। ये नॉन आयनिक क्रिस्टल में होता है, इसमें कैटायन और एनायन का कोई लेना देना नहीं है, इसमें नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में सॉरी इसमें जो क्रिस्टल रहता है वो नॉन आयनिक रहता है, हाँ। इन विच पार्टिकल्स लीव द क्रिस्टल टू डिक्रीज डेंसिटी। इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट जैसा ही है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्रिस्टल को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। एंड दिस डिफेक्ट अकर्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये डिफेक्ट दिखता है। एग्जांपल हो गया आयोडीन। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इसमें कोई फॉरेन पार्टिकल आके
कोई फॉरेन बाहर का कोई पार्टिकल आके क्रिस्टल में घुस जाता है, ठीक है, इन विच एनी स्मॉल फॉरेन पार्टिकल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड हैंस इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द, ऑब्वियसली अगर ये बाहर का कोई पार्टिकल का घुसेगा तो मास इंक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीज होने से डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस आर द एग्जांपल्स। अब आ जाते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स के ऊपर। नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं रहता, ठीक है। स्टोइचोमेट्रिक में कैटायन और एनायन का रेशियो सेम रहता था, इसमें डज नॉट रिमेन सेम, हैंस इट इज कॉल्ड नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है, व्हेन एनी आयनिक क्रिस्टल हीटेड इन द मेटल वेपर ऑफ इट्स ओन, मतलब कोई आयनिक क्रिस्टल सपोज सोडियम क्लोराइड को सोडियम का वेपर में हीट किया, या फिर पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम के वेपर में ही हीट किया, ठीक है, पोटेशियम के वेपर में ही हीट किया, देन मेटल वेपर टेक्स अलॉन्ग विद इट सर्टेन वैकेंसी, अलॉन्ग मेटल वेपर टेक्स एन एनायन अलॉन्ग विद इट एंड क्रिएट सर्टेन वैकेंसी। तो मेटल वेपर जो होता है वो एक एनायन को उठा के लेके चला जाएगा इधर पे से क्रिस्टल में से, और कुछ खाली जगह बन जाएगा, उस खाली जगह पे एक इलेक्ट्रॉन जगह ले लेता है, ठीक है, एनायन का वैकेंसी में एक इलेक्ट्रॉन जगह ले लेता है, उसको बोलते हैं एफ सेंटर। और ये एफ सेंटर जितने भी अल्काली मेटल्स हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, इसमें कलर जनरेट करता है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट अगर होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा, यानी एफ सेंटर अगर उसमें होगा, देन उसमें कलर प्रोड्यूस होगा, कलर दिखेगा, कलरफुल दिखेगा वो कंपाउंड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड व्हेन हीटेड इन सोडियम वेपर गिव्स येलो कलर, सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड व्हेन हीटेड विद पोटेशियम वेपर इट विल गिव वायलेट कलर, एंड सिमिलरली लिथियम क्लोराइड विल गिव पिंक कलर, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि मेटल पे कलर किस रीज़न से आता है, देन इट वुड बी एफ सेंटर, ओके। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसके ऊपर कभी क्वेश्चंस नहीं आए हैं बोर्ड एग्जाम पे। दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। फेरिस FeO ferrous oxide is mostly found in varying compositions in Fe 0.93O and Fe 0.96O, मतलब FeO जो है इसमें वो रेशियो 1:1 हमेशा नहीं रहता है, थोड़ा वेरिएशन होता है, वही उसी का दिखाया गया है। इन क्रिस्टल्स ऑफ FeO some Fe twice positive cations are missing and the loss is made up by the presence of required number of Fe thrice positive। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो FeO में क्या है, Fe ट्वाइस पॉजिटिव है और O ट्वाइस नेगेटिव है, तभी इसका रेशियो है FeO फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी इसमें से कुछ Fe ट्वाइस पॉजिटिव मिसिंग हो गए, उसकी जगह Fe थ्राइस पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा सा क्रिस्टल में डिफेक्ट रहता है, वही है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसको इतना ज़्यादा डीपली जा पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम्स में आते नहीं हैं, ठीक है। और ये इसका रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, आप देख लेना, ईजी सा है, बहुत ईजी है। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो वगैरह अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो इसके नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचे, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर। अच्छा, सेमीकंडक्टर जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर पाता है उसके थ्रू, और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता। तो सेमीकंडक्टर एक्चुअली होता क्या है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसमें हाई टेम्परेचर में इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाता है, मतलब हाई टेम्परेचर में वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, बट लो टेम्परेचर में वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, मतलब लो टेम्परेचर में करंट पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम। एक ही पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल, एक ही पर्टिकुलर टाइप का एटम से बनता है। देखो, या तो जर्मेनियम ले लो, या गैलियम ले लो, या सिलिकॉन ले लो, एक ही मटेरियल से अगर कोई, एक ही सिलिकॉन से अगर पूरा मटेरियल बना होगा, या जर्मेनियम से पूरा मटेरियल बना होगा, देन इट इज़ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है।
और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्सचर होता है। तो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फाउंड बाय डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन डोपिंग का मीनिंग मिक्स करना, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर जो सेमीकंडक्टर है उसमें कोई दूसरा इम्प्योरिटी अगर ऐड करने के बाद अगर सेमीकंडक्टर बनता है देन इट इज़ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोपिंग करने से क्या होता है, उसका जो प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज हो जाता है, वो उसमें करंट फ्लो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जनरली डोपिंग में क्या करते हैं, कोई एक दूसरा ग्रुप का मटेरियल एलिमेंट रहता है उसको ग्रुप 14 के एलिमेंट में डालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दो टाइप का होता है, एन टाइप है और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर formed by mixing the group 15 element in group 14 element, hence they have free electrons which help in conduction of electricity। एक्चुअली होता क्या है, देखो ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है और ग्रुप 15 है पीरियडिक टेबल में, ठीक है। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जैसे कार्बन, ये दिखा यहाँ पे शो किया गया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वैलेंस शेल में, आउटर शेल में। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, और ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है उसमें आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई ग्रुप 14 का एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इसमें कोई ग्रुप 15 का एलिमेंट से डोप करते हैं, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में, तो क्या होता है इसमें बहुत सारे कार्बन है सपोज, ठीक है। उसमें से किसी एक कार्बन को हटा के उसमें ग्रुप 15 एलिमेंट से फॉस्फोरस डाल दिया, तो अभी पहले यहाँ पे 4 कार्बन थे, तो यहाँ पे 4 एटम थे ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन फॉस्फोरस होने के बाद एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 5, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, मतलब 5th इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया ना, तो उस वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने लगता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ठीक है। ग्रुप 13 एलिमेंट को जब ग्रुप 14 एलिमेंट में जब डालते हैं, सपोज कार्बन है, यहाँ मान लो सिलिकॉन का एग्जांपल ले लिया। सिलिकॉन का एग्जांपल में सिलिकॉन, बहुत सारे सिलिकॉन है इसका क्रिस्टल्स पे। सिलिकॉन का आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। उसमें से क्या किया, एक सिलिकॉन एटम को हटा के उसमें एल्युमिनियम से डोप कर दिया, एल्युमिनियम आ गया। एल्युमिनियम आने पे क्या होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा यहाँ पे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का कमी होगा वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। होल मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है बस, ठीक है। तो फिर होल आने की वजह से वहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी होल के थ्रू फ्लो करने लगेगा। पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की वजह से करंट फ्लो कर रहा था। यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल के फ्लो करने से करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फाउंड बाय मिक्सिंग ग्रुप 13 एलिमेंट in group 14 element, hence they have holes to help in the conduction of electricity, ठीक है। तो याद रखना, जब भी ग्रुप 14 एलिमेंट में ग्रुप 15 एलिमेंट डालेंगे, ग्रुप 14 एलिमेंट ग्रुप 15 एलिमेंट डालेंगे तब एन टाइप सेमीकंडक्टर ही बनने वाला है, और जब ग्रुप 14 एलिमेंट में ग्रुप 13 एलिमेंट डालेंगे तब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनने वाला है। तो इसके ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पर, ठीक है। बस आपको एलिमेंट याद रखना है कि ग्रुप 30 में कौन से हैं, ग्रुप 14 में कौन से ग्रुप 15 में कौन से। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि सिलिकॉन में आर्सेनिक ड्रॉप करने से कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है, तो सिलिकॉन में आर्सेनिक और सिलिकॉन है ग्रुप 14 एलिमेंट, आर्सेनिक है ग्रुप 15 एलिमेंट, ऐड करो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, ठीक है। सो बैंड थ्योरी जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो करता है,
ईजिली फ्लो करता है। इंसुलेटर में करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करता। और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इसका प्रॉपर्टी है, मतलब हायर टेम्परेचर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, बट लोअर टेम्परेचर में ये एज अ इंसुलेटर काम करता है। ठीक है। सो तो कंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, सबसे पहले वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी रहते हैं और कंडक्शन बैंड खाली होता है। ठीक है। तो जब भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिक। वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो जैसे ही कंडक्शन बैंड में जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और करंट इजीली पास करेगा। ठीक है। तो मेटल्स में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करके रखते हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप करके रहते हैं। ठीक है। ओवरलैप करने की वजह से ईजिली करंट फ्लो करता है मेटल्स में। पर इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर्स में काफ़ी गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। तुम कितना भी एनर्जी प्रोवाइड करो, ये यहाँ से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, इसलिए इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में स्मॉल गैप होता है। तो जनरली लोअर टेम्परेचर में करंट फ्लो नहीं करता है, पर जैसे ही टेम्परेचर राइज करते हैं, हाई करते हैं, तो करंट वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में बैंड में जाने लगता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लगता है, एंड देन करंट विल फ्लो इजीली। ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल बैंड थ्योरी। हियर यू कैन रीड द डेफिनेशंस ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। जो मैंने समझाया वही बात इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ 5 टाइप के होते हैं बेसिकली क्रिस्टल में। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी प्रेजेंट रहेगा कोई भी मटेरियल में, तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित करता है। दिस इज़ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है। और डायमैग्नेटिज्म क्या है, जब भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सब पेयर्ड अप रहते हैं। पेयर्ड अप मतलब एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज घूम रहा है एटॉम्स में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है एटॉम्स में। तो जनरली उनका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके से कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने की वजह से ये इस टाइप के जो क्रिस्टल है, मटेरियल है, वो मैग्नेट से रिपेल करते हैं। ठीक है, रिपेल करते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या आता है, इनमें जो जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो एक तरफ अलाइन रहते हैं, एक ही तरफ अलाइन रहते हैं सबके सब। सो इस टाइप का जो भी मटेरियल रहता है उसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम में आता है, तो यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है। दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज आर द एग्जांपल्स, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। नेक्स्ट, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म यह है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक डोमेन्स रहते हैं वो जितने पैरेलल रहते हैं, सपोज 3 पैरेलल हैं तो 3 एंटी पैरेलल रहेंगे। ठीक है। तो इस टाइप में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स जनरली कैंसिल हो जाते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट्स रहने की वजह से। और इस टाइप के जो मटेरियल रहते हैं वो ना तो अट्रैक्ट होते हैं ना तो रिपेल होते हैं, नाइदर दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट नॉर दे रिपेल्ड फ्रॉम द मैग्नेट। ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अकर्स ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड अनपैरेलल डोमेन्स। तो यहाँ पे देखो कुछ पैरेलल डोमेन है और उनसे ज़्यादा एंटी पैरेलल डोमेन है, मतलब अनइक्वल नंबर है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या था, इसमें जितने पैरेलल थे उतने ही एंटी पैरेलल थे, लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं है। फेरोमैग्नेटिज्म में जितने पैरेलल हैं उससे ज़्यादा या तो अनपैरेलल मतलब अनइक्वल रहेंगे, या तो पैरेलल ज़्यादा रहेगा या तो एंटी पैरेलल ज़्यादा रहेगा। तो दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, these are weakly attracted magnet and this is the example Fe3O4। ठीक है।
अच्छा, एक और चीज़, अगर ये जितने जो वीडियो स्लाइड्स हैं इनका आप हैंड रिटन PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं फुल चैप्टर का, सॉलिड स्टेट फुल चैप्टर का, तो आप ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक, डाउनलोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा फर्स्ट टू लास्ट, और इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको जो अलग अलग नॉर्थ ईस्ट बोर्ड से आए हुए हैं। द क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस बोर्ड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सपोज आसेक असम बोर्ड, कॉसम मणिपुर बोर्ड, एम्बॉस मेघालय बोर्ड। You can download this full PDF at just a very optimal price. ठीक है, you can check in the description. These are previous year question from various boards. The first question, in Schottky defect, in order to maintain electroneutrality, the number of missing cations and anions are equal. हाँ, true, because अगर हम लोग देखा स्कॉटकी डिफेक्ट में कैटायंस और एनायंस इक्वल नंबर में ही क्रिस्टल को लीव करते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है इस वजह से, क्योंकि जो कैटायंस और एनायंस है वो इक्वल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर सेमीकंडक्टर्स, हाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स वेरी विद टेम्परेचर, गिव वन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सब मैंने अंदर टेक्स्ट में करा दिया है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, उनके एग्जांपल वगैरह वगैरह। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन भी ऑलरेडी हो गया, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, which substance is better for making permanent magnets, ferromagnetic or ferrimagnetic? The answer will be ferromagnetic. Okay, next, name the type of semiconductor found when silicon is doped with gallium. तो हम लोग को पता है सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है और गैलियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है। तो गैलियम, सिलिकॉन को जब गैलियम से डोप करेंगे देन हम लोग को पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल? स्कॉटकी डिफेक्ट। आंसर इज स्कॉटकी डिफेक्ट, क्योंकि उसमें से स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, कुछ कैटायंस और एनायंस क्रिस्टल को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो मास कम जाता है, मास कमने से डेंसिटी भी कम जाता है। नेक्स्ट, मेंशन द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद फास्फोरस। सिलिकॉन है ग्रुप 14 का, फास्फोरस है ग्रुप 15 का। अगर सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करेंगे देन वी विल गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, मेंशन द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हेन ऑब्टेन व्हेन सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक। आर्सेनिक भी ऐसे ही है, ग्रुप 15 का ही है। ठीक है, आर्सेनिक ग्रुप 15 का है, सिलिकॉन को डॉप करो यू विल गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स ए परमानेंट मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज, आंसर होगा ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सभी जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट रहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं, मतलब घूम जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके पास मैग्नेट लाओ तो क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो मैग्नेटिक डोमेन्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ओरिएंट हो जाते हैं। उस वजह से ये इनका जो ऑपोजिट पोल्स है वो सामने सामने आ जाता है। ठीक है, उस वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर डिसलोकेशंस इन क्रिस्टल? डिसलोकेशन क्रिस्टल में क्या होता है पता है आपको, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, उसको डिसलोकेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। नेम द नॉन स्ट्रक्चरोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ अल्काली मेटल्स। तो आप लोग को पता है इसका आंसर एब्सेंटर्स है। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। To get the p-type semiconductor, impurity to be added to the silicon would have which following number of valence electron? तो p-type semiconductor पाने के लिए हम लोग को कौन सा इम्प्योरिटी बनाएंगे जिसमें बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी 3। और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उस इम्प्योरिटी में बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज अ पोटेशियम, व्हाई इज पोटेशियम क्लोराइड समटाइम्स वायलेट इंस्टेड ऑफ प्योर वाइट? दिस इज ड्यू टू एब्सेंटर। मैंने बताया था जो भी अल्काली मेटल का क्लोराइड है उसमें जो कलर आता है वो किस रीज़न से आता है, एब्सेंटर्स की वजह से आता है। ठीक है, हाउ डज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म डिफर फ्रॉम द फेरोमैग्नेटिज्म इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डोमेन?
हम लोग को पता है फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, जितने भी मैग्नेटिक डोमेन है वो एक तरफ अलाइन रहते हैं, ठीक है। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, कुछ जितने पैरेलल डोमेन होते हैं उतने ही एंटी पैरेलल डोमेन होते हैं, ठीक है। सो दिस इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड दिस इज फेरोमैग्नेटिज्म। द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर्स इन ए क्रिस्टल मेक्स इट कलर्ड बनाते हैं, ठीक है। द मटेरियल दैट soften on heating to finally flow like a liquid is amorphous solid, जैसे ग्लास, एग्जाम्पल इज ग्लास, क्योंकि ग्लास को हीट करने से वो पिघल जाता है, लिक्विड की तरफ फ्लो करता है। सो दिस इज amorphous solid. Which point defect increases the density of the crystal? It is interstitial defect. क्यों interstitial defect? क्योंकि इसमें एक क्रिस्टल में फॉरेन मटेरियल आके घुसता है, फॉरेन मटेरियल एंट्री करता है, उस वजह से इसका मास बढ़ जाता है, मास इंक्रीज होने की वजह से इसका डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मेलिएबल एंड डक्टाइल? आंसर विल बी मेटालिक सॉलिड्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। पिघले हुए स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट सॉलिड स्टेट में नहीं करता है, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड जो है। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि आयनिक सॉलिड में जब भी कोई कंडक्टिविटी मतलब क्रिस्टल में कंडक्टिविटी रहता है, वो किस लिए रहता है? आयन्स जो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव आयन होगा, वो क्रिस्टल में किसी तरह मूव करता है। अगर इस पॉइंट से उस पॉइंट पर जाता है, उस पॉइंट से इस पॉइंट में जाएगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा ना। अगर वो फ्लो नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगा? अगर पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता। तो सॉलिड स्टेट के केस में यही होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आयन्स फ्लो नहीं कर पाते क्योंकि अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। पर मोल्टेन स्टेट में, मतलब पिघले हुए स्टेट पे, आयन्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं। तो दैट्स वाई क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वही इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी आप लोग देख सकते हैं। Why are solids rigid? The solids are rigid because the constituent particles are closely packed. The particles do not have any translatory motion. उनमें कोई translatory motion नहीं होता, उसमें कोई movement नहीं होता, उस वजह से सॉलिड जो रहते हैं वो रिजिड रहता है, सख्त रहता है, ठीक है। वो मूवेबल नहीं रहता है, पानी की तरह या गैस की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, ठीक है। सॉलिड फिक्स रहता है, रिजिड रहता है। Why is glass considered as super cool liquid? ऐसा हम लोग को पता है कि ग्लास एक लिक्विड की तरह काम करता है, उसे हीट करने से वो पिघलता है, पिघलने के बाद लिक्विड की तरफ फ्लो करता है, और जनरली ग्लास फ्लो करता है। अब जैसे आप कोई पुराने बिल्डिंग का अगर आप ग्लास को देखोगे तो आप पता चलेगा कि नीचे की तरफ थोड़ा सा मोटा रहता है, वो थिक रहता है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा थिन रहता है। उसका मतलब क्या है? मतलब ये धीरे धीरे फ्लो करता है ग्लास, ठीक है। ग्लास धीरे धीरे फ्लो करता है और जिसकी वजह से नीचे थोड़ा सा थिकनेस हो जाता है और ऊपर थिन हो जाता है, ठीक है। सो ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। नेम द पैरामीटर्स विच कैरेक्टराइज ए यूनिट सेल। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। कैरेक्टर्स जो पैरामीटर्स हैं वो है एज लेंथ, ABC एंड द एक्सियल एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा। व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड? विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज इफेक्टेड बाय इट एंड ऑन व्हाट वे? तो जब क्रिस्टल को हीट किया जाता है तो उसमें वैकेंसी डिफेक्ट आता है। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब क्या? एनायन या कैटायन उसमें से रिलीज़ हो जाता है, निकल के चला जाता है, और उसकी वजह से मास कम जाता है, और मास कमने की वजह से इसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट आर शोन बाय जिंक सल्फाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड? तो जिंक सल्फाइड हम लोग को पता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जिंक का जो साइज़ है वो सल्फ़र के साइज़ से काफ़ी छोटा होता है। कैटायन जो है वो एनायन के साइज़ से काफ़ी छोटा होता है, सो इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। और AgBr दैट इज़ सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों ही शो करता है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर?
इन CCP and BCC, what is the coordination number? अच्छा, तो coordination number is the number of nearest neighbors with which an atom is in contact. एक एटम कितने एटम्स से कांटेक्ट में है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 और बॉडी सेंटर क्यूबिक में होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ठीक है। सो नेक्स्ट है classify n type or p type semiconductor when germanium dropped with indium and boron dropped with silicon. तो silicon so in both case it will be p type semiconductor because यहाँ पे ग्रुप 14 एलिमेंट में ग्रुप 13 एलिमेंट से डोप किया गया है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स रहता है बैलेंसिंग, इसका बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहता है ग्रुप 13 एलिमेंट का, हैंस इट विल फॉर्म ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियोस वगैरह अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरह सारे यूनिट्स ख़त्म करूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे नया यूनिट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड आरिगातो गोजाइमाशिता।